आप सभी को विक्रांत प्रणाम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी आदरणीय गुरुओं को आज गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। I welcome you all to the sports series वेबिनार जुनून। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुभाष मसीह विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्पोर्ट्स वेबिनार जुनून में आप सभी का स्वागत करता हूं। First of all, I would like to congratulate all VGI members for the inauguration of the sprawling corporate office at Gwalior. The Vikrant Group of Institution Indore and Gwalior is one of the best group of academic institutions that have embarked on a mission with zeal to imbibe a culture of providing quality education to the learners, thereby leading them to the pinnacle of success. Our chairman, Sri R.S. Rathore, sir, the founder of Vikrant Group of Institution and engineer by profession, who had a dream of setting up a world-class educational institute in Madhya Pradesh, he, along with like-minded academicians, took the leap and set up VGI Indore and Gwalior for shaping of young minds through quality education. The Vikrant Group of Institution ensure that the students excel in both academics as well as sports. All major sports are promoted at VGI. Football, kabaddi, kho-kho, wrestling, hockey, cricket. Last week's webinar, we had the international wrestling superstar Shri Krapa Shankar ji with us. And along with other sports, we have promoted cricket to a great extent. VCA, Vikrant Cricket Academy, an initiative of Vikrant Group, inaugurated by Shri Sanjay Jagdale, cricketer, coach and national team selector, is registered with IDCA and has a dedicated team regularly playing the club tournament. We at Vikrant in the past have organized VCCL, that is Vikrant Corporate Cricket League, a day-night cricket tournament for the world of corporates. VPL, that is Vikrant Premier League for school students. We do have sports scholarship for meritorious players, and we ensure their grooming and their participation in national and international tournaments. I would now take the opportunity to welcome our respected chairman, Shri Rakesh Rathore sir, vice chairman, Srimati Meena Singh Rathore ma'am, group director, Dr. Satyanarayan sir, managing director, Nitin Tomar sir, secretary, Shri Vikrant Singh Rathore sir, treasurer Indore, Garima Tomar ma'am, treasurer Gwalior, Gunjan Rathore ma'am, and all respected principals, dean, faculty, staff members, students, and all other connected for this sports webinar, Junoon. It is a matter of great pleasure for us to have international cricketer Sri Amay Khurasia ji with us this beautiful Sunday morning in the VGI Sports Webinar Junoon. We welcome you, sir. Thank you so much. Pleasure. Now I would humbly request our most respected chairman, Sri Rakesh Rathore sir, to bestow upon us his blessings before we proceed any further. Shri Rakesh Rathore sir. थैंक यू सुभाष जी। सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा पर सभी गुरुजनों को इंक्लूडिंग अमय, ही इज टू यंग देन मी, बट अपने फन में गुरु हैं आप, तो मैं गुरु पूर्णिमा पर सभी को विक्रांत प्रणाम बोलता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। और जुनून एक श्रृंखला जो आप लोगों ने, हमारे विक्रांत परिवार ने प्रारंभ करके रखी है, उसका तीसरा कड़ी है शायद ये। और तीसरी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय ख्यातनाम हमारे मध्य प्रदेश के गौरव श्री अमय खुरासिया जी। मुझे पता है अमय जी कि जब मैं जवान हुआ करता था तब आप बहुत अच्छे परफॉर्मर हुआ करते थे इंडियन टीम के। मध्य प्रदेश के गौरव, आप जबलपुर में पैदा हुए, बहुत सारी कहानियां हम लोग सुनते रहते थे। मैं उस समय छत्तीसगढ़ में हुआ करता था।
आज मेरा सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के दिन आपके दर्शन प्रत्यक्ष होने का अवसर भी मिला। विक्रांत की एक परिभाषा है जिसमें हम सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करते हैं, जिसमें खेल और स्वास्थ्य ये प्रमुखता से हम लोग लेते हैं, क्योंकि स्वस्थ तन है तो स्वस्थ मन है और उसी में ही पूरे संस्कार विकसित होते हैं। ये बहुत अच्छा है, हमारे लिए गर्व की बात है, पूरे विक्रांत समूह के लिए गर्व की बात है। और विशेष रूप से मैं सुभाष मसीह जी और आयोजकों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके जैसी शख्सियत को वेबिनार के माध्यम से भले ही हो, लेकिन भविष्य में आने वाले दिनों में मैं चाहूंगा कि क्रिकेट जैसे अत्यंत लोकप्रिय खेल के आपके जो गुर हैं वो गुर भी जो है विक्रांत के बच्चों को कुछ भविष्य में मिलेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत और विक्रांत समूह में आपके आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करने के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और आपको सुनना चाहता हूं। थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसा जुनून चाहिए। दोस्तों, आज हम आप सभी को दोबारा ले चलते हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड में, यानी खेलों की दुनिया में। यहाँ सितारों की चमक में वो तेज है जो आपको चकाचौंध कर देगी, जिसकी हर जीत पर राजबाड़ा चमन हो जाता है और पूरा शहर और देश ट्राई कलर तिरंगे के रंग में रंग जाता है। वो है क्रिकेट। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट और क्रिकेट। सोते जागते उठते बैठते बस क्रिकेट और बहुत सारा क्रिकेट। सुनील गावस्कर, कपिल देव, किरमानी, संदीप पाटिल, सचिन, सहवाग, राहुल, सौरभ, Dhoni, Virat, these are a few names that gives you goosebumps. They are sure to make you stand up and listen. Listen to what they say, listen to what is said about them. Friends, the only conversation that any Indian citizen without any discrimination of caste, creed, age or gender can participate is cricket and more cricket. As Virat Kohli rightly said, the bat is not a toy, it's a weapon. It gives us everything in life. It gives me everything in life, which helps me to do everything on the field. Friends, I could never forget the day when I had a huge collection of my favorite cricket players' photographs, both national and international, and I was surely crazy about them. Vivian Richards, Brian Lara, Michael Holding, Joel Garner, Andy Roberts, David Boone, Shane Watson, Andrew Flintoff, Shane Warne. The name goes on and on, friends, but one name that is close to our heart and our home, the left-handed batsman who had done proud to the cricketing fans of Indore, who had scored a scintillating 57 of 45 balls in an international debut match against Sri Lanka and had scored more than 7,000 runs in the domestic first-class cricket. As MS Dhoni rightly said, never let your success get to your head and never let your failure get to your heart. He was part of the team that played in the World Cup held in England in 1999. The one and only Mr. Amay Khurasia, born on 18th May 72 at Jabalpur, did his schooling from St. Paul's, Indore, and later graduated with Commerce and did his LLB. He's a lawyer. His marks in subject of CRPC Criminal Procedure Code has been university record highest till date. And yesterday when I was speaking to him, he confirmed that he was a meritorious student. Played his first club cricket match at the age of 13 as an opening batsman at the first day of his entry into formal cricket. He has always believed that till the full stop doesn't come, the sentence is incomplete. So friends, let me present the one who had made us all proud, the household name of Indore cricketing community, the well-read, the great conversationalist, a commentator for Neo Sports, a columnist for Nai Duniya and Rajasthan Patrika, a chief coach with MPCA for 10 years, a motivational speaker, and an ideal sportsperson. So ladies and gentlemen, please put your hands together for Mr. Amay Khurasia. Welcome, Amay ji, on the sports webinar, Junoon.
Thank you so much for that kind introduction. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। सर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज But बहुत सारे सवाल पूछना है before हमको आपसे, बहुत सारी बातें करनी सर। कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल before that मैं राठौर सर की बात को आगे लेके जाऊंगा कि सर you still look very young. Age is a number. Sir, I was also about to say that. I can see that. And सेकेंड चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप सबको पहली बात तो गुरु पूर्णिमा का बहुत बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं। और आपने मुझे भी गुरु की श्रेणी में रखा। हालांकि अगर हम इस शब्द के विस्तृत उस पर जाएंगे तो पाएंगे, और केवल एक ही भाषा है संस्कृत जिसमें गुरु को बहुत अत्यधिक अच्छे तरीके से समझाया गया है। और जो व्यक्ति आपको जानकारी देता है, वह कोई विषय के बारे में जानकारी देता है, वह अध्यापक होता है। और जो व्यक्ति विषय के बारे में जानकारी देके थोड़ा नॉलेज देता है, वो उपाध्याय होता है। और जो व्यक्ति एक स्किल सिखाता है, कोई सा भी हुनर सिखाता है, वह आचार्य होता है। और जो व्यक्ति आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है, वह गुरु होता है। और उसके बाद ईश्वर की इच्छा होती है कि वो आपको एनलाइटन करे, तो फिर आपको वो सदगुरु खुद बनाता है, अगर ईश्वर चाहता है तो हमारे लिए भी एक चैलेंज होता है एज अ टीचर। मैं अपने आप को एक साधारण अध्यापक की श्रेणी में रखता हूँ। हमारे लिए भी बड़ा एक महत्वपूर्ण रास्ता होता है कि क्या हमें वह रास्ता तय करना है गुरु बनने का, क्योंकि रास्ता बड़ा लंबा होता है और रास्ते में काफी सारा सेल्फ एनालिसिस होता है। काफी सारा आपको अपने आप को बहुत सारी चीजों से आपको अपने आप को त्यागना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को तपस्या करना पड़ती है। तो इस पावन पर्व पर आप सबको मेरा प्रणाम। एंड इट वाज वंडरफुल सर, इट वाज फैंटास्टिक इंट्रोडक्शन बाय बोथ ऑफ यू। आई डोंट डिजर्व सच अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन, बट थैंक यू सो मच। सर यू आर सर। आपकी सर जब मैं उस पे गया आपके उसके ऊपर, तो आप इतने डाइवर्सिफाइड, लाइक यू हैव सच अ डाइवर्सिफाइड प्रोफाइल। तो मुझे बहुत समय लगा, इनफैक्ट जो है पिछले एक हफ्ते से मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं रिक्वेस्ट करता कि मुझे एक हफ्ता और दिया जाए आपके बारे में हासिल करने में। सुभाष जी, जिनके पास कोई काम नहीं होता वो डाइवर्सिफाई कर लेते हैं अपने आप को 50 जगह। Sir, first of all, we'd like to hear about a few memories which you have, sir. बचपन की childhood memories, sir, कुछ share करें, like आपका बचपन कहाँ बीता और उस समय आपका इंटरेस्ट किन चीजों में था, क्या किया करते थे? See, family was always into academics, so they also wanted me to be a good student. So मैं जब 12.5 साल का था तो एक कंडीशन ले डाउन कर दी थी कि आप अच्छा पढ़ेंगे तो ही खेलने को मिलेगा। Okay. और साइकिल हुआ करती थी रोज, तकरीबन 28 किलोमीटर साइकिल चला के आते जाते थे। टोटल दिन की साइकिलिंग 28 किलोमीटर होती थी। जो आजकल के बच्चे बोलते हैं थक जाते हैं, वो समझ में नहीं आता मुझे। और उस समय तो 4 ही बादाम मिलते थे भींग के, आज तक तो 40 बादाम मिलते हैं बच्चों को, हमको तो 4 ही मिलते थे। तो भिगा के रखते थे सर उनको। हाँ, बस वही। और उसमें भी ऐसा लगता था कि सिर्फ गाय को गायब नहीं करते। तो एक्चुअली मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो यह है कि आपकी लाइफ में भैया ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके सामने आपकी एडवर्सिटीज कितनी है। ये इंपॉर्टेंट है कि उन प्रतिकूलताओं से आप बाहर कैसे आते हैं। और प्रतिकूलताओं से बाहर आने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन को उस संकल्प की आंच में जलाएं, तभी आप उसका निर्माण कर पाएंगे, नहीं तो आप कभी नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे एक तो आपको सेंसिटिव होना चाहिए लाइफ में, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सेकंड चीज, आपके पास साधना होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई सा भी लक्ष्य जो है वो किसी भी साधन का मोहताज नहीं है, लक्ष्य केवल साधना का मोहताज है। और अगर आप साध्य हैं तो फिर आपको साधन की आवश्यकता नहीं है। तो साधना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज है भावना। भावना को अगर उसका मूल रूप में जाएंगे तो भाव मतलब होता है क्रिएटिविटी। भाव मतलब होता है आपको किसी भी चीज में सृजन करना। तो वो एक महत्वपूर्ण चीज है। आपके पास भाव आ जाता है, भावना आ जाती है, तो फिर आपके पास करेज आ जाता है, आपके पास शौर्य आ जाता है, वीरता आ जाती है।
तो जब आपके पास करेज आ जाता है, फिर आप इंडिपेंडेंट थिंकर हो जाते हैं, फिर आप स्वयं सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और उस निर्णय पे गिर के फिर खड़े होते हैं। बोलते हैं ना कि हारने वालों का भी अपना एक रुतबा होता है, अफसोस तो वही करें जो दौड़ में ही शामिल ना थे। सो क्या होता है, आपकी जो एबिलिटी है वो आपके लिए पहला दरवाजा खोलेगी लाइफ में, बस उसके बाद आपका एटीट्यूड और आपका पैशन आपको आगे लेके जाएगा। और वो एटीट्यूड और पैशन आप हर बार अपने मेहनत से ही डिफाइन कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि आप अपने जीवन में केवल आप अपने आप को परिश्रम की मलहम लगाइए, सारे घाव भर जाते हैं। और अगर आपके पास श्रम करने की ताकत है तो कितना ही बड़ा सूखा होगा, आपका बीज उगेगा। क्योंकि आपके पास, आपने कुछ खेत जो होते हैं वो जिंदगी में पानी से नहीं बोए जाते, सींचे जाते, वो पसीने से सींचे जाते हैं। पसीने से सींचे जाते। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जिंदगी में। मतलब स्ट्रगल, संघर्ष जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और वो ईश्वर ने सबकी झोली में डाला है। जिसको ऊपर जाना है उसको ज्यादा मिला है। अगर हम श्री राम को याद करते हैं या पांडवों को याद करते हैं, कोई भी अपने बच्चे का नाम दुर्योधन नहीं रखता, अर्जुन रखते हैं। अर्जुन रखते। सब बच्चे, सब लोग अपने, कोई भी अपनी बहू का नाम केकई नहीं रखता, पर सीता माँ रखेंगे, श्री राम रखेंगे। इन्हें ज्यादा वनवास मिला है, इन्होंने ज्यादा तपस्या करी, इनकी ज्यादा परीक्षा ली ईश्वर ने। पर आज हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं, हम किसी और के बारे में बात नहीं करते। तो तपस्या ईश्वर और परीक्षा, ईश्वर इम्तिहान उन्हीं का लेता है जिसको उसे ऊपर लेके जाना होता है। अगर उस इम्तिहान में आप आधे रास्ते में छोड़ देते हैं उसको, तो ईश्वर बोलता है वेल डन, आई एम वेरी हैप्पी, नेक्स्ट। बिकॉज उसकी लिस्ट तो इतनी लंबी है कि वो बोलता है कि अगला आ जाए भाई, माया में उलझ तू जा। तो स्पोर्ट्स की जर्नी हो या कोई सी भी फील्ड की जर्नी हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, पढ़ाई हो, इस सब जर्नी में आपको केवल आपको तपस्या करनी पड़ेगी और त्याग करना पड़ेगा। सर, और फिर वही गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। कई बार आपको फर्स्ट स्टेप में हैंड होल्डिंग सर कहाँ से मिली? बिकॉज सर देखिए, एक चीज आपने बोली जुनून, सर मैंने देखा खिलाड़ियों में बहुत होता है, पर लैक ऑफ गाइडेंस इज समथिंग दैट स्पोर्ट्स पर्सन रियली सफर्स फ्रॉम। तो सर आपके केस में सर कहाँ आपको फर्स्ट गाइडेंस मिला? सर मोस्ट ऑफ द एजुकेशन इन लाइफ जो होती है वो सेल्फ डायरेक्टेड होती है, आप ध्यान रखिएगा। जब बच्चा क्रॉल करता है तो ध्यान रखना, आप क्रॉल करके जब पहली बार खड़ा होता है और जब वो गिरता है तो आप उसको एड्यूलेशन देते हो, कम ऑन, वेल डन, यू कैन डू इट, और फिर वापस वो खड़ा होता है। दैट इज फर्स्ट एजुकेशन फॉर हिम एंड ही मूव्स अहेड इन दैट डायरेक्शन। सो इफ यू कैन एजुकेट योरसेल्फ with every moment of your life. See, 2 days will never come in your life. Yesterday and tomorrow. Okay. Only today will be with you. And today also this particular moment. तो इस मोमेंट को विद्यार्थियों को बहुत अच्छा यूटिलाइज करना चाहिए। डेफिनेटली आपको मेंटोर चाहिए, बट मेंटोर भी आपको बता सकता है आपको करना क्या है। क्या आप में वह जिजीविषा है काम करने की? क्या आप में वह समर्पण है कि 42 डिग्री में आप दौड़ने निकलेंगे? क्या आप में वो समर्पण है कि जब बहुत तेज पानी गिर रहा है तो आप घर के बाहर निकलेंगे और अपनी एक्सरसाइज करेंगे? क्या आप में वो समर्पण है कि जब खूब ठंड पड़ रही है तो आप 5 बजे उठ के कूदेंगे रस्सी, और रस्सी कूदेंगे तो पसीना 5 मिनट में आ जाता है, और ठंड जो 2 डिग्री का टेम्परेचर है वो फटाक से आपको 20 का लगने लगता है। बट वह सब जो करना है वो तो आप ही को करना है। मेरी बिगनिंग सीसीआई क्लब से हुई, मेरे टीचर थे संजय गदाले सर, और फिर वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। पहला गुरु तो मेरी माँ बाप थे, मेरे पहले गुरु। माँ होती सबसे पहला गुरु, तो फिर पिता होते हैं, फिर मेरे स्कूल के टीचर्स थे। क्रिकेट में मुझे जगदाले सर ने टीच किया। सर फर्स्ट स्टेप, आप जब पहले दिन गए, आपको जब फर्स्ट दिन सीसीआई एंटर करा आपने, तो क्या एज थी और क्या एक्सपीरियंस रहा सर? लाइक हाउ वाज इट? आई वाज 13 इयर्स ऑफ एज। ओके। और एक अच्छा क्लब हुआ करता था। मुझे तो उसमें मालूम नहीं था कि भाई क्रिकेट में, मतलब स्कूल में पीटी की ड्रेस होती थी, सफेद रंग की एक शर्ट होती थी और हाफ पैंट होती थी, वो पहन के पहुंच गए। काफी बच्चों ने देखा जो पहले से एस्टैब्लिश थे कि भाई ऐसे कपड़े पहन के कोई, मतलब टेरिकॉट की शर्ट पहन के कोई खेलने आता है क्या? अब भाई हमें तो इतना ही मालूम था कि भाई खेलना है और सफेद कपड़े पहनने, तो हमारे पास यही थे। हम पहुंच गए। ड्रेस कोड, दैट वाज द स्कूल पीटी ड्रेस कोड। पीटी ड्रेस कोड। एंड नीचे वो बाटा के जूते थे जिसमें हरा सोल होता था, हरा सोल होता था। तो पहुंच गए। उन्होंने बोला कि भाई एक प्लेयर कम पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा ये नया लड़का आया हुआ है, छोटा सा बच्चा है, इसको ले जाओ। हमको ले गए वो।
तो बस ऐसे जर्नी शुरू हो गई है लाइफ की. इट वाज अ वंडरफुल स्टार्ट दैट ऑन अ फर्स्ट डे यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ पार्ट ऑफ प्लेइंग 11, whether you play at 11 or you play at 10, but you got an opportunity to be a part of a field. और सर आप बता रहे थे कि ओपनर कोई नहीं हुआ करता, क्या आपको फर्स्ट डे फर्स्ट मैच पे ओपनिंग के लिए भेज दिया गया था? मैंने सुना. नहीं, इट इज अ सिंपल थिंग भैया कि बच्चे क्या होता है कि अब मैं 12.5 या 13 साल के 12.5 साल का था और दूसरे बच्चे कुछ 16 के थे, कुछ 15 के थे, कुछ 14 के थे, कुछ. और तो हम लोग यूजुअली उस समय तो बहुत दूर हुआ करता था ITI मैदान, और उस समय जो आज का क्लब इंदौर स्पोर्ट्स है उसको न्यू संगम बोलते थे. और वहां पे बड़े बच्चे खेलते थे और मिल एरिया के बच्चे. वैसे भी शहर के बच्चे उनसे रफ एंड टफ होते हैं, मजबूत होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एडवर्सिटीज में बड़े होते हैं और विपत्तियां आपको बहुत सिखाती हैं. तो उनके 2-3 फास्ट बॉलर्स थे जो प्रैक्टिस में थे, जो मैच की पहले वार्म अप था, तो हमारे कुछ प्लेयर्स ने देख लिया, तो उन्होंने कहा यार इसको भेज दो ओपन. मुझसे पूछा ओपन करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे. और यही चीज मैंने जब इंडियन टीम के लिए मुझे सेलेक्ट किया और पूछा कि विल यू ओपन, आई सेड डेफिनेटली आई विल ओपन. आई नेवर सेड नो. माय फर्स्ट मैच वाज नंबर 5 बैटिंग ऑर्डर, एंड माय थर्ड मैच आई वाज ओपनिंग, एंड आई नेवर सेड नो, बिकॉज़ द पॉइंट इज कभी फौजी ये नहीं बोलता मैदान में जाके जंग में कि साहब मैं ये फ्रंट लूंगा, आप वाला फ्रंट ले लो. यहाँ गोलियां ज्यादा चल रही हैं, वहां गोलियां कम चल रही हैं. वो बोलता है यार आई विल टेक द बुलेट्स जस्ट हेड ऑन. वेरी ट्रू. That's why we are having a webinar over here, because people in Galwan are dying for us. Very true, sir. Very true. And we are also killing them. Very true, sir. Very true. तो सर फर्स्ट एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा आपका, यानी आप जब पहली बार गए क्रिकेट उसमें, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि बाउंसर वाउंसर्स आई या पेस बॉल आई या मैटन पे बॉल, क्योंकि मैटन पे सर बॉल बहुत फास्ट आती है टप्पा खाने के बाद, कई बार दिखती भी नहीं है. नहीं, सुभाष जी एक्सपीरियंस था मैटन का? सुभाष जी, see, experience is all about your thought process. Okay. Always in life. Yes, definitely ball to tej aayegi. It's all about when you convert everything which is into a non-acceptance as an acceptance, your mode of looking things change. Like when you are jealous with somebody, it is non-acceptance of his success. And the moment you are not jealous with him and you accept it, it becomes an inspiration. You think I have to become like him. The moment you think about something where you say that you are angry with somebody, non-acceptance of somebody. The moment you accept him the way he is, it becomes love. It becomes acceptance. The moment you are fearful of something, कि यार मुझे डर लग रहा है वहां जाने में, so you get fear. The moment you accept it, that I can go and I will try it, it becomes a challenge, it becomes an adventure. It's all in the mind, it's all a thought process. So negativity can always be turned into a positive thought process as long as you have a mindset. So the mindset is the key. बाउंसरें आएंगी, बॉल ऑड बाउंस भी होगा, उंगली भी टूटेगी, हर कुछ होगा. जो लोग 12-12 घंटे कंप्यूटर में बैठते हैं, उनकी भी आंखें दुखती हैं, उनकी भी कमर दुखती है, but they do a job. So every field has its own professional hazards are always there. You have to accept it, but you can do yoga in the morning and still be better. सर आपने सही कहा, डर के आगे जीत बोलते हैं. सर आप मानते हैं डर के आगे जीत है? Well, to be honest, ये सब क्लीशेज बन गए हैं, बट लाइफ में अगर आपको कोई सा भी एफर्मेशन देना है किसी को भी, तो सबसे पहले तो नेगेटिव वर्ड हटाना चाहिए. सो वी हैव लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड. सो इंटेलेक्चुअल थिंग्स एंड इंटेलेक्चुअल वर्ड्स will not give you the edge, but the emotional words will give you the edge. Okay. आपका IQ मैटर नहीं करता लाइफ में, नहीं, आपका I can मैटर करता है. I can. आपका EQ मैटर करता है, पर उसके ऊपर भी आपका SQ मैटर करता है. तो इमोशनल क्वेश्चन से ज्यादा स्पिरिचुअल क्वेश्चन मैटर करता है. एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्यों मैटर करता है? लेट अस गो टू आवर फैमिली. हमारे माँ बाप हार्वर्ड नहीं गए, स्टैनफोर्ड नहीं गए, उनके माँ बाप भी नहीं गए, फिर भी कितने खुश रहते थे, क्योंकि सब कुछ ईश्वर पे डाल देते थे, हमेशा ईश्वर पे डालते थे, बिकॉज स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत हाई था. दे ऑलवेज न्यू देयर इज अ शोल्डर वेयर दे कैन लीन ऑन, एंड दे ऑलवेज यूज द शोल्डर ऑफ ईश्वर. And cosmic power has its own cosmic power has its own say, which we can't see. That's why you see these people without bistleries, without Reebok shoes, and without eating maximum stuff that people are using in today's world for diet and for longevity. They lived more than 90 years of age. They were happy people.
because they were happy. So your happiness, that HQ, happiness quotient, is so important in life. And that can only happen when you don't believe much in IQ, but more in SQ and EQ. Then positivity and HQ walks in. सर जो आपका लॉन्ग वेट रहा, आपने जो मतलब जो आपने एमपी रिप्रेजेंट करा रणजी ट्रॉफी में एंड ऑल, सर उस ब्रेक के बारे में बताइए जो श्रीलंका पे आपको मिला, या मतलब उस समय क्या सर साइकोलॉजी रही, आपने कैसे अपने आप को सस्टेन करा इतने लंबे समय? See, I cricket game खेला. I scored 100 when I was 21 years of age against England touring team. Wow. England touring team. It was a big. They were considered to be बड़े मैच माने जाते थे. But मुझे चांस नहीं मिला. मुझे 6 साल वेट करना पड़ा. Long wait, very long. 6 साल वेट करना पड़ा. 27वें साल में मेरे शोल्डर की सर्जरियां हो चुकी थी, घुटने की सर्जरी हो चुकी थी. But the point is, जब मैंने जमशेदपुर में 100 बनाया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, again side game, तो Steve Waugh ने statement दिया, if this boy is not playing for India, that means India has tremendous talent, that he can't find a place. Oh. So they selected me for the Commonwealth Games. So मतलब it is fine, the weight is also fine. वही बोला ना मैंने कि ईश्वर ने परीक्षा ली, तो fair ना, परीक्षा दी, और परीक्षा लेता और देते, और आज भी ईश्वर परीक्षा ले रहा है तो परीक्षा दे रहे हैं, और अपना काम करना आना चाहिए हमको, बस that's it. Giving up is the most easiest thing in life. Very true, sir. Very most easiest thing. And success will release its full rewards unless and until you don't give up on your efforts. Very true, sir. So it will release its full rewards, but you don't have to to allow the efforts to be. You don't put your efforts on hold in life. Very true. Whatever you're doing, you put your efforts always there, because see, defeat is a temporary condition. It's a very temporary condition, but giving up makes it permanent. Very true, sir. So don't give up. सर फर्स्ट टाइम आपको खबर लगी कि आपका फाइनली सिलेक्शन इंडियन टीम में हुआ है, तो हाउ वाज दैट मोमेंट फॉर यू, और आपको कहां से किसने बताया, लाइक सर वो वाला जो है मोमेंट शेयर करें हमारे साथ, आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग. 1999 में आफ्टर 7-8 years of long wait पाकिस्तान की टीम आई थी, तो उसका एक साइड गेम था. यस सर. वो साइड गेम था ग्वालियर में. ओके. हाँ, आई हैव लवली मेमोरीज ऑफ ग्वालियर. सो वो ग्वालियर में साइड गेम था, तो मुझे रात को बोला गया कि आप नहीं खेल रहे हैं. ओके. हाँ, और वहां से शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम सब थे. तो 3 day गेम था. फिर मुझे सुबह 8:15 बजे बोला गया कि आप खेल रहे हैं. अच्छा. तो मैंने कहा खेल लेते हैं, खेलने के लिए तो आए. तो उस मैच में मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी और सेलेक्टर्स आए हुए थे. मैंने केवल 49 रन बनाए बस, पर मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी 49 रन बनाए, और उसमें मैंने कुछ अच्छे चौके छक्के लगा दिए. तो उनको लगा कि यार लड़की में दम है. तो जब मैं आउट होके गया तो मदन लाल जी मेरे पास आए. उन्होंने बोला यार यू आर फिट, यू विल प्ले फॉर इंडिया. आई वाज selector telling you like this. And I think that was a day he told me that you'll play for India. And then बाकी फिर बैंगलोर गए, अगला मैच था. फिर शायद से बैंगलोर में सिलेक्शन हो गया वर्ल्ड कप की टीम का, एंड आई वाज सिलेक्टेड. और उसके पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म करके आ ही गया था मैं. तो कुछ इंडियन टीम के प्लेयर्स ने बोला ही था कि ही इज अ डिसेंट प्लेयर. सो वर्ड ऑफ माउथ भी था. बट दैट वाज द जर्नी एंड इट वाज नाइस. सो आई केम टू नो दैट वे. देन आई वाज प्लेइंग अ रणजी ट्रॉफी गेम आई थिंक इन राजनांदगांव. वहां पे मुझे खबर आई. बट उसके पहले मुझे प्री हैंड ग्वालियर के ड्रेसिंग रूम में सेलेक्टर ने बोला था कि नो यार यू आर वेरी गुड. I mean, you have been scoring runs, and if this is your talent, we will like to back you. So that was a positive note from a selector. Yeah. But eventually, I got the news in Rajnandgaon that I am part of Indian team in the World Cup 1999. So first time Indian, first time Indian the cap पहनी, first time Indian team के साथ उतरे. So how was that feeling? Because playing Ranji Trophy for so long, एक अपने आप में consistent रहा सर, mental like you have said. Yeah, it is the cap. Word use करूँगा मैं. Subhash ji, the cap is the pride. Yeah. It's a pride. I mean, the moment you get it, you want to wear it in the night and wear the Indian color and see yourself in a mirror, because that's what you look for. That's what you look for. So it was just a great feeling, and the best thing is the first thing that you do is you call your mother.
Yeah. You call your father, you call your mother, and tell them, I've got this. And there were no video calling in those times, but then you share it with your people, you share it with your brothers, with your bhabis, with your teacher. So it was a wonderful feeling. Yes, it is. And it's, I'm lucky. I'm very lucky. तो जब फर्स्ट टाइम इंडिया टीम से खेल के वापस इंदौर आया तो हाउ वाज द रिस्पांस ऑफ पीपल एट इंदौर? कैसा लगा यहाँ आपके साथ वाले और इंदौर में रिस्पांस कैसा? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ये तो जब करके आया था तब का रिस्पांस तो बहुत टॉप क्लास, जब नहीं करके आया था उसका रिस्पांस भी पूछेगा। जब नहीं करके आया था तो लोगों ने बोला था टकले गंजे कुछ करके नहीं आया। सब सुनना पड़ता है साहब। झगड़ा भी खूब किया, गुस्सा भी आया, ये वही लोग हैं। Very true sir, very true sir. That is life, that is life. But today अगर कोई आज बोलता है टकला गंजा तो मुस्कुरा देता हूँ, वो तो अभी जो है वही बोलेगा यार। उस समय झगड़ लेता था। सर मेरे ख्याल से राकेश सर कुछ बोलना चाह रहे हैं। राठौर सर आप कोई? सर हाँ, मैं सुभाष, मैं इतनी देर से आधा घंटा हो गया था मैं को सुनते हुए। मुझे लग रहा था कि ये आज की तिथि में, पहले मैं सोच रहा था उपाध्याय हैं ये या आचार्य होंगे, अब मुझे लग रहा है कि ये गुरु ही हैं। जो कमिटमेंट लेवल है, ये चीजें सब अपने बच्चों को मैं भी बताता हूँ। और मेरे चिरंजीव विक्रांत भी लेफ्ट हैंडर क्रिकेटर हुआ करते थे, इंदौर के किसी फील्ड में अपने स्कूल से गए थे। अनफॉर्चुनेटली उनने आगे अपना कंटिन्यू नहीं कर पाया। वो भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आपसे बात करेंगे। और ये जुनून जो आप बार बार बोल रहे हैं कि जुनून, कि जिंदगी में तो सब देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, गिव अप तो करना ही नहीं है किसी भी तरीके से। और ये आपने अपने लाइफ से भी देखा, मैंने अपने लाइफ से भी देखा। दैट वाई आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द डिस्कशन। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मुझे अभी 11:30 बजे दूसरी मीटिंग में जाना था, तो लेकिन छोड़ना संभव नहीं हो पा रहा है। फिर भी कोशिश करूंगा लास्ट के अगर 2-4 मिनट आया तो जरूर ज्वाइन करूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू। अमय जी आपने बताया, हमें सर आपने सर राकेश सर को एक बात बोलूंगा, क्योंकि राकेश सर ने जुनून की बात करी है। यही सोच हर तपिश में जलता आया हूं कि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र कहाँ सूखा करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और मयसर लिबास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैंने धूप को ही अपना लिबास बनाया, उसी को ओढ़ के निकल पड़ा। बहुत बढ़िया, धूप को ही अपना लिबास बनाया। और ये नई पीढ़ी पूरी मोटिवेट होगी इन डायलॉग से ही। आई डोंट नो सर, द पॉइंट इज अगर आपको दिल पे लगती है तो आप आगे बढ़ते हो। जी जी जी। और अगर आपको दिल पे नहीं लगती है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाते जिंदगी में। तो वो लगना चाहिए। और लगना चाहिए। कौन सा जी देखिए, संघर्ष के आगे अगर आप संघर्ष कर रहे हैं और आपके पास संघर्ष करने की क्षमता है और आपके पास वह हिम्मत है, तो हौसले के आगे तो रास्ते के जो शूल होते हैं वो भी फूल बन जाते हैं। बिल्कुल बन जाते हैं, बिल्कुल। आई डू एग्री विद यू। हमें बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं यही चीजें मैं खुद बोलना चाहता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं रह पाते हैं। अब मैं भी शब्द सीख रहा था आपसे। अरे नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे सीखूंगा सर। नहीं, बहुत अच्छा। बट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नो डाउट। जो आदमी इस मुकाम पे पहुंचता है उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण होते हैं। एंड आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट टू मीट यू, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। मैं क्षमा चाहूंगा आज पूरे टाइम नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग जरूर सुनूंगा इसकी। थैंक यू। थैंक यू सर। शुक्रिया सर। जो यहाँ एक चीज हमें सर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, राकेश राठौड़ सर हम सबके न सिर्फ मतलब ये मानिए लीडर हैं, बट ही हैज गॉट ट्रेमेंडस लेवल ऑफ एनर्जी, द वे ही वर्क्स। कल कुछ ऐसी बात हो रही थी, नितिन सर से पूछा कि सर कब जो है आफ्टरनून में कब रेस्ट लेते हैं, कब मैं फोन करूं उनको। ही सेड ही ओनली रेस्ट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स मे बी, और संडे को कुछ समय के लिए, अदरवाइज रेस्ट नाम की चीज उनके साथ नहीं जाती। तो मान के चलिए इज अ ग्रेट लीडर, और उन्होंने कॉन्स्टेंटली वीजीआई इंदौर, ग्वालियर, कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ ग्वालियर, इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडेड हिमसेल्फ। सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस, सो सो नाइस। आपने जो अभी बात फेलियर की चल रही, सर आपने फेलियर बहुत देखे हैं। लाइक आपने स्विच ओवर्स भी करे, चीजों को लेके छोड़ा भी है, बदला भी है, आपने एकेडमी का वर्क करा, कोचिंग करी, चीजों को चेंज भी कर। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा कोचिंग के साथ, और
आपने एक अपनी जो है मतलब क्रिकेट एकेडमी भी लॉन्च की थी सर, उसके बारे में कुछ बताएं हमें सर। Sir, the experience of working as a cricket coach is excellent, sir. Cricket coach is excellent, and the point is, you will always, all your life, you can be a teacher all your life. You have to be a teacher all your life, and you have to be a good student also all your life. Because सबसे बड़ी शिक्षा तो वो होती है जब आप स्वयं को शिक्षित करते हैं. सबसे बड़ी शिक्षा वही है. आपको कोई भी स्कूल और कॉलेज कुछ नहीं बना सकता जब तक कि आप अपने आप को स्वयं को भीतर से शिक्षित करना नहीं चाहते हैं. अगर आप भीतर से शिक्षित हो गए तो फिर बहुत सारे मकाम तो आप यूं ही पा लेते हैं. और बहुत महत्वपूर्ण यह भी है कि क्या आप अपने स्वयं के दायित्वों का रिसर्च पेपर तैयार करना चाहते हैं. क्या आप सम्मान के हिमालय बनना चाहते हैं. और अगर आप यह सब करना चाहते हैं तो फिर आपके अंदर आपको अच्छाइयों का विश्वविद्यालय खोलना पड़ेगा. और वह कैसे आएगा? वह जब भी आएगा जब आपका जो चरित्र है वह इस्पात जैसा मजबूत हो. और चरित्र का निर्माण करना इतना आसान थोड़ी. प्रतिष्ठा आ सकती है, चरित्र नहीं आता. प्रतिष्ठा आ सकती है. और आजकल के विद्यार्थियों को मैं एक बात बोलूंगा जो बहुत अच्छी बात बोली है कि काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा स्वल्पहारी ग्रह त्यागी. काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तदैव च. स्वल्पहारी ग्रह त्यागी. कौवे जैसी चेष्टा होना चाहिए आप में, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए आप में, श्वान जैसी निद्रा होना चाहिए एकदम कम, ताकि आप अपने कार्य के प्रति लगातार क्रियाशील बने रहे. आपको ग्रह त्यागी होना चाहिए और आहार कम करना चाहिए. आहार मतलब जंक, कचरा नहीं खाना चाहिए. तो ये 5 गुण विद्यार्थियों के चाणक्य ने बताए हैं. ये 5 गुण आजीवन हर किसी को, इसमें उम्र बाधा नहीं है. आप बूढ़े हो सकते हैं पर आप बुजुर्ग जब भी कहलाते हैं जब आपके अंदर समझ आती है. बुजुर्ग व्यक्ति में समझ होती है. बूढ़े तो आप उम्र से हो जाते हैं. तो जो अच्छे बुजुर्ग होते हैं वे स्टूडेंट, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट ही बन के रहते हैं. वो 90 में भी पढ़ाई करते हैं, 70 में भी पढ़ाई करते हैं, 80 में भी पढ़ाई करते हैं. तो ये 5 गुण विद्यार्थी में होना चाहिए. और ये 5 गुण बहुत आवश्यक गुण है और ये केवल तपस्या और त्याग से आते हैं. सर, स्पोर्ट्समैन से लेकर कमेंटेटर तक का आपका सफर कैसा रहा? कमेंट्री का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? लाइक हाउ वाज इट? यू आर इन दैट एटमॉस्फेयर, यू आर विद दोस प्लेयर्स एंड आप वहां अपनी भावनाओं को भी खुल के व्यक्त कर सकते हैं. तो वो एक्चुअली बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस है. बिकॉज क्या होता है कि जब आप खुद प्लेयर होके बॉक्स में बैठते हो तो आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करना बहुत इजी होता है. पर क्या आप उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? तो वहां पे आपका जो भाषा का ज्ञान है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है. और भाषा में केवल शब्दों का उपयोग महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा में भावना का उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण है. क्योंकि बिना भावना के जो भाषा है, वो जो शब्द हैं वो बड़े बौने लगते हैं. तो आपके पास बहुत बड़ा स्टॉक होना चाहिए पॉजिटिव लैंग्वेज का. और उस पॉजिटिव लैंग्वेज में आप कितने अच्छी तरह उसको एक्सप्रेस कर सकते हो बिना ज्यादा क्रिटिकल हुए. तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क है. और इसके लिए आपके पास बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन भी चाहिए. बट आई डोंट थिंक सो. देयर आर पीपल हु आर देयर हु आर फार बेटर देन मी, हु आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब. बट कमेंट्री में यू हैव टू हैव अ वेरी वास्ट नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज. गेम का नॉलेज तो होना ही चाहिए बट लैंग्वेज का नॉलेज भी बहुत जरूरी है. बिकॉज little glitch here and there and you realize that you have made a big mistake and you learn. It is a wonderful experience and I'm very lucky that I could do that. I really loved it. It was fantastic. And the best part is कि बिना मतलब आपको सबको लगता है कि it is just a box where people are talking. It's a lot of hard work behind that. नहीं sir. I'm just telling you. I'm telling the people who do it, people like Gavaskars and all those are doing it. It's a lot of hard work. You have to prepare yourself a lot. And it is just wonderful. But कोई सी भी चीज अगर आपको करनी हो ना तो उसका एक ही सूत्र है जो मैं सब विद्यार्थियों से और आपके सब लोगों से शेयर करूंगा. कोई सी भी सफलता पानी हो तो मैल्कम ग्लैडवेल का एक रूल है और वो रूल है 10,000 आवर्स का. ओके. और वो 10,000 आवर्स का रूल जो है वो रफली 10 साल में पूरा होता है.
मतलब 10 साल की तपस्या। 10 साल की तपस्या जब से स्टार्ट करें आप, अगर कोई सी भी विद्या में आपको हुनर चाहिए तो सतत आपको उसको 10 साल देना पड़ेंगे या 10,000 घंटे। तो केवल बॉबी फिशर एक ऐसे हुए चेस में प्लेयर जिन्होंने 8 साल में पूरा किया ये चेस की दुनिया में महारत हासिल करने के लिए। बट बाय एंड लार्ज आपको यू नीड 8 to 10 years। और अगर आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप करके देखेंगे कि जो आप काम करते आए हैं, अगर आप उसको सतत 5, अगर आप टीचर हैं और आप पढ़ाते हैं, अगर आप 8 साल पढ़ा लिया है तो आप 9वें साल में आप जाके बस इट्स अ नॉर्मल एक्टिविटी फॉर यू। Even you can take TV anchors, you take previous TV actors or film actors or scientists. It all works out when you give a number of hours to it. So they say ना कि repetition is mother of all skills. तो वो अभ्यास के जड़मति होत सुजान, या रसरी आवाज जात है सिल पर पड़त निशान। तो वो अभ्यास बहुत आवश्यक है करने के लिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास एक बड़ा डिसिप्लिन अप्रोच हो लाइफ को लेकर, आप मॉरली बड़े इंटैक्ट हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप एथिकली आप सेंसिटिव नहीं है और आप आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। प्रॉब्लम ये हुआ है कि पिछले 10 सालों में काफी सारे लोग जो आगे बढ़े हैं और जिन्होंने लीवरेज लिया है रॉन्ग चीजों का, वे सफल हुए हैं। और हमने सबने सोचा कि सफलता यही होती है, पर विपत्तियों में ये सब बबल फूट जाते हैं, सब फूटते हैं। तो जब ये विपत्तियों बबल फूटते हैं तब जिसका चरित्र होता है वही ऊपर इंटैक्ट बाहर निकल के आता है। भले वो 10 साल सोया रहे, भले 10 साल आप उसको ना पूछो, पर 11वें साल में आपके 10 करोड़ रुपए रखे हैं किसी लॉकर में, तिजोरी की चाबी आप उसी को देंगे जो एथिकल और ईमानदार है। सही बोला। जो अनएथिकल और ईमानदार नहीं है, भले वो अरबपति होगा, आप चाबी उसको कभी नहीं देंगे। दैट इज अ वे ऑफ लाइफ। सो कैरेक्टर इज समथिंग व्हिच टेक्स यू लॉन्ग इन लाइफ। प्रतिष्ठा आपको आगे लेके नहीं जाती, चरित्र आपको आगे लेके जाता है। Very well said, sir. Very well. It is only your charitra which takes you ahead in life. और चरित्र को लेके आप पूरी रामायण, पूरी गीता, पूरा कबीर सब पढ़ लीजिए, आपको सब क्लियर मैसेज मिलेगा कि चरित्र पे कितना बड़ा स्ट्रेस है और चरित्र कितना महत्वपूर्ण बताया गया है। आप भी प्रेजेंट में लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री कल परसों गलवान वैली में थे। ये परिभाषित करता है उनके चरित्र को कि वहीं पहुंच गए 2 डिग्री में सैनिकों के बीच में स्पीच दी। मतलब look at the beauty of it. That is called a leader. That is called somebody who is leading the nation. That is fantastic. So much to learn. And he started his journey what? As a tea vendor. उनका मजाक उड़ाया गया, पर उन्होंने 10 साल में प्रूव कर दिया। आज तक ट्रम्प को गले किसने लगाया? चाय वाले ने गले लगा लिया। कैरेक्टर चाहिए, कैरेक्टर चाहिए उसके लिए। कैरेक्टर है उस आदमी के पास, चरित्र है, प्रतिष्ठा नहीं है, चरित्र है। वो एक देश की भावना को लेके जाता है और इमोशंस और फीलिंग्स के साथ चलता है। उसने पुतिन को गले लगा लिया। आप सोचिए, आपका मुझे एक फोटो निकाल के दिखा दिए भारत के 70 साल के इतिहास में कि किसी ने पुतिन को या किसी ने रशिया के प्राइम मिनिस्टर को और अमेरिका के प्रेसिडेंट को गले लगाया हो एज अ थर्ड वर्ल्ड नेशन। That is the beauty of the gentleman. So that only comes with character, sir. Character, no doubt. मतलब वो कैरेक्टर से ही आता है। जब आप जो बोलते हो वो करते हो तो चरित्र बनता है। सही बोला है, अब सही बोला सर। जो हमें सर हमारे पास समय थोड़ा सा शॉर्ट है, कोई रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ खेलेंगे। यू हैव टू आंसर इन 1 word. ओके। मैं भी सवाल पूछूंगा, यू हैव टू आंसर इन 1 word. सर, लक और प्लक? सॉरी, लक और प्लक? लक और प्लक, लक और हार्डवर्क? हार्डवर्क। Who is the best test batsman? I will say Sachin Tendulkar, Rahul Dravid. The best one-day batsman? Virat Kohli right now. The best 2020 batsman? Not getting any name right now, but De Villiers maybe, who's retired. The best pace bowler? I think Glenn McGrath in his times was the best. Okay, the best spinner? Shane Warne, Muthaiya Muralitharan. Best wicket keeper? उन्होंने मना किया किसी को नहीं देना। आधे दे। Best wicket keeper I think Sangakkara, Kumar Sangakkara. Okay, the best cricket team apart from India? Australia.
Okay, the best fielder. I think Ricky Ponting in all positions. Okay, the best skipper. I'll go for Stephen Waugh. Best all-rounder. I will go with Kapil Dev. Best cricket buddy. Your buddy. Oh, I have few, so I'll skip that. Okay, who is the in fact, who is the best commentator? I think Ian Chappell. Ian Chappell. Okay, the best cricket coach. I think Greg Chappell. Fastest runner between wickets. Greg Chappell in academic coaching. Okay. Fastest runner between wickets. Virat Kohli. Most memorable match. When, where, and between which teams? Oh, I think it was. It has to be that India played in Sharjah against Pakistan, and we got out. Evening match, day-night match. Day-night match, and we got out on 110 or 107 runs, and we got them out in 84 runs, something like that. We won the match. Anything, a best match for an Indian has to be against Pakistan only. And that too in which we are going to win. That is very important. Okay, Mr. Amay Khurasia, a player or a coach? Now a coach, and I love it. Okay, one word response to women cricket. Excellent. I'm very pleased and proud of them. Any regrets? So many. Don't want to mention them. Favorite movie? Okay, I have a lot of them, but I love Black, Amitabh Bachchan's movie. I love that, and there are many, but I love Black for acting of Rani Mukherjee and Amitabh Bachchan. Outstanding skills. Then Invictus, Morgan Freeman, okay. amazing acting skills. I will advise. Actor. Sorry. Favorite actor. Favorite Indian actor. Amitabh Bachchan. Favorite Bollywood actor. मेरे पिताजी का भी वही था. Favorite Bollywood actress. Oh, I think it has to be Wahida ji, then Rekha ji. Okay, that's wonderful. Favorite Hollywood actor. I think nobody can come close to Morgan Freeman. Morgan Freeman, wonderful. Favorite Hollywood actress. Nobody has such. Favorite song. Okay, favorite song is Ruk Jana Nahi Tu Kahin Haar Ke. Your ideal day. Well, every day is so lovely. I have got my kids around me. Quarantine is there. This lockdown was there, and this is now lock open. Whatever it is, unlocking is there. But kids are not going to school, so spending time with them and learning little things about life. That's wonderful. That's wonderful. You are a great fan of which sports person apart from cricket? Oh, I love Rafael Nadal. Okay. What do you consider your greatest achievement? Being around my father when he was sick for a very long time and was able to serve him. Your role model. Sorry? Your role model. That's the last one. Can't say. But yes, I love reading history and love Subhash Chandra Bose. Thank you so love much. Bhagat Singh. Not right to pick one man because a lot of them gave life for the nation. Right from Abata, Rani Abata to Martande Verma to Borfukan to Shivaji Maharaj. I mean, they all were people who were there right from Guru Govind Singh Ji, Tegh Bahadur Sahab, Sant Ratidas, Matidas, Satidas. Not easy to pick one man, sir. Thank you so much. Thank you, Amayji, for answering all the questions straight back on the front foot. Now, a few questions of the student and faculties of VGI. Now, I'll start with VGI Gwalior. First of all, I'll invite a student, Abhishek Shrivas, Civil Second Year Vikrant Cricket Team, to ask his question. Okay, Abhishek Shrivas. Abhishek Shrivas, are you there? हेलो आप पूछ सकते हैं. आपको आवाज आ रही है अभिषेक मेरी? यस सर. आपका सवाल. सर माय नेम इज अभिषेक श्रीवास सर. आई एम सिविल सेकंड ईयर स्टूडेंट सर.
जी Sir, I want to ask, sir. Recently, sir, we lost the final of a nodal, sir. Just because at a certain moment, sir, at a certain point, we came under pressure, sir. Due to which, sir, we lost the match, sir. Can you suggest, sir, how to overcome that pressure? How to overcome that pressure so that we can perform well in our upcoming tournament, sir? Okay, so dear friend, दबाव जो होता है वह खेल का एक अनिवार्य हिस्सा है, ठीक है? Yes, sir. प्रेशर मतलब दबाव जो है वह खेल का एक अनिवार्य हिस्सा है, बट उसके प्रति आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी यह आपके हाथ में है। Yes, sir. सो उस प्रतिक्रिया पे ध्यान देना चाहिए। सो वो प्रतिक्रिया आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आती है कि आपके पास कितने ओवर बचे हैं अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो, या कितने विकेट्स आपको निकालने हैं और कहां से आप रन रोक सकते हैं। पर एक लंबा प्रोसेस है, उसमें अभ्यास लगता है। Yes, तो sir. दबाव से जब आप बार बार निकलने की आदत बना लेते हैं तो दबाव आपके लिए एक सामान्य सी प्रक्रिया हो जाती है। Yes, sir. पर क्या आपने दबाव के लिए तैयार किया है? क्योंकि दबाव तो जीवन में आपको हर जगह मिलेगा, खेल और खेल के बाहर भी मिलेगा। Yes, sir. तो जब आपको दबाव खेल के बाहर मिलेगा या खेल में मिलेगा तो आप उसको अभी जीतेंगे रेगुलरली, तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उस पे अपनी प्रतिक्रिया देना। बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट, नॉट रिएक्ट टू इट। जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो रिस्पॉन्ड में आपको पॉज देना पड़ता है, पॉज, आपको चिंतन करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। तो वो पॉज देना आवश्यक है। वो पॉज देना केवल साधना से आता है, साधना स्थिरता से आती है, यू नो। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। शुक्रिया सर। I'll request Adil Khan to ask his question. Adil Khan, are you there? From Vijay Gwalior, Adil Khan. यस सर। आपका सवाल आदिल। सर आप अपने फर्स्ट मैच का कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए सर। क्या माइंडसेट था सर आपका, क्या गेम प्लान था? आदिल, मैं जब खेलने गया फर्स्ट मैच तो मैं ऑलरेडी 200 बना चुका था 2 टूरिंग टीम्स के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। तो टू बी ऑनेस्ट आदिल, मुझे लगता था कि मैं तो बिलोंग करता हूँ जगह को। मुझे लगा ही नहीं कि मैं इस जगह, क्योंकि जो भी आप अपने आप को एफर्मेशन देते हो लाइफ में, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप वैसे ही हो जाते हो। अगर आप सोचोगे कि मैं पॉजिटिव एफर्मेशन दूंगा तो आप पॉजिटिविटी ही आपके साथ चलेगी और फिर कॉस्मिक एनर्जी आपको आके हेल्प करना शुरू करती है। तो मैंने बहुत एंजॉय किया और मुझे बड़ा मजा आ रहा था और इट वाज जस्ट अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड आई लव्ड इट। मतलब पूरे स्टेडियम में तालियां बज रही थी, आप चौके छक्के लगा रहे हो, सब लग भी रहे हैं, तो मजा ही आएगा भाई, मजा ही आएगा। और बेस्ट चीज मालूम है क्या है? उसके बाद मेरा देश जीत गया मैच, वो महत्वपूर्ण था। मैं उस भूमिका में मेरा छोटा सा एक योगदान था, जरा सा कण बरोबर, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और उस फीलिंग के कारण मैं उस फीलिंग को लेकर हमेशा जीते हैं आज भी। और उस फीलिंग के कारण ही, उस पर्टिकुलर मैच के कारण ही जो मैंने अच्छा किया है, उसके कारण ही आज मैं और आप इंटरेक्ट भी कर रहे हैं। मुझे आज इनविटेशन भी इसीलिए मिला है। Very nice, very nice. Sir, I'll request now Ms. Himanshi Batra, student counselor and motivator, to ask a question. Ms. Himanshi Batra, are you there? Yes, sir. So my question to you is, Ms. Himanshi. am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You are audible. Please go ahead. So my question to you is, what are the qualities that the sports person should have? See, it is not about Himanshi, as I told, if you would have been listening, it is all about the character within you, and the formation of character only happens when you are in the bridge of a discipline. क्योंकि अगर आप अभ्यास में खूब पसीना बहाते हैं तो जंग में खून कम बहता है। You know, if you practice, if you sweat in practice, you bleed less in battle. So it's all about lots and lots of perseverance and self belief. और वो सेल्फ बिलीफ हिमांशी जब आता है, जब बेटा आप जिंदगी में खूब अभ्यास करते हो और सही अभ्यास करते हो। Practice doesn't make a man perfect. Perfect practice makes a man learn. Perfect practice makes a man learn. And there are many things, like with time, you learn so many things. It's not the time which heals all the wounds.
is the love which heals all the wounds. Thank So you have very to much. you have to love the game. You have to enjoy whatever you're doing, Himanshi. If you're a cricketer, you're a table tennis player, you're a student, or you're a daughter, just enjoy that particular moment and be good to yourself in that particular moment. But if you're not organized and disciplined in life, then you won't be able to give that to anybody else, because your heart will not speak. Your heart will only speak when you are self-disciplined. और एक और बहुत अच्छी चीज है, जब आप जिंदगी में जब खूब संघर्ष करते हैं ना, और संघर्ष को एक त्योहार तरीका मनाते हैं, संघर्ष को आप त्योहार बना लेते हैं, तो फिर भीतर अंदर से आप बड़े खूबसूरत होते जाते हैं, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी विकसित होती है, और उस क्वालिटी का नाम है आत्मबल। और उस आत्मबल को कोई नहीं ले सकता आपसे, क्योंकि आत्मबल आपका मनोबल मजबूत करता है। Thank you so much, sir. Thank you so much. आपने एल्केमिस्ट की याद दिला दी। एल्केमिस्ट में वही बात रहती है, like he says, on a journey, and you have to know yourself. सुभाष भाई, in fact, एल्केमिस्ट हो, पॉलो कोएल्हो हो, रॉबिन शर्मा, मॉन्गूस होल्डस फरारी हो, या जितने भी बड़े बड़े लेखक हुए हो, टी.एस. एलियट से लेके जो भी हुए हो, सब लोगों ने वेदों को, गीता को ही अपने आत्मसात करके डाला है। बस उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट किया है। भाई, the entire crux and the beauty of all the books comes down to living life. And who can teach you better than Gita and the example of Sri Ram Bhagwan to learn how to live a life? तभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया है। You don't take it as a religious book, take it as a story. मतलब it is so beautiful story. It is such a wonderful story. जब आप सोचिए, for all of you, if I'm not digressing from the subject, बहुत महाभारत में एक समय जब अर्जुन जी ने युद्ध जीत लिया था और कृष्ण भगवान जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला कि तुम ये गोपियों को जितनी भी, इनको सब सुरक्षित छोड़ आओ। तो अर्जुन ने बोला, जब तक मेरा गांडीव मेरे हाथ में है कुछ नहीं हो सकता, इनको मैं सुरक्षित छोड़ के आ जाऊंगा द्वारका। तो भगवान को मालूम पड़ गया कि इसको अहम आ गया है, तो रास्ते में गोपियों को भील तीरंदाजों ने लूट लिया, और अर्जुन का गांडीव कुछ नहीं कर पाया। और उसमें फिर एक दोहा है, मनुष्य नहीं समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। तो कितनी शिक्षा है कि आपको जिंदगी में कभी अहंकार नहीं करना है, दंभ नहीं रखना है। तो विवेक, मॉडेस्टी, हम्बलनेस इज योर लाइफ। The more humble you are, the more bigger you are. Very true. बोलते हैं ना कि साहब सिक्के आवाज करते हैं, नोट तो चुप ही रहते हैं। सही बोला। Now sir, I'll request Professor K.D. Pathak sir, please ask his question. सर मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, बाद में सर हमें मुझे बहुत डांट पड़ती है कि हमारा क्वेश्चन रह गया। सॉरी यार। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं तो क्या, देखिए, I want to give whatever I can to the kids. Yes sir, please. Thank you so much, Subhash sir. Apart from this, I really want to thanks to the MS sir. COVID-19 की वजह से we got the opportunity to meet live with a legendary cricketer like you, sir. So basically, I have two questions. मुझे ये करना है कि you have gone through with all the transitional phases of the cricket from Test cricket to the 2020 which is on fire nowadays. So what do you think कि जो Test cricket था, which was the original cricket, and are you in with this 2020 phase of the cricket? Like most of the former cricketers, they believe that the Test cricket should be given more privilege. आजकल Test cricket बहुत कम हो गया है, and 2020 on fire. So do you believe this Test cricket को और थोड़ा सा भी हमें वरीयता देना चाहिए? सर आपको थोड़ा brief, थोड़ा Test cricket is an original form of the game. It started with Test cricket. That's why it is called Test. T-E-S-T is Test. So आपका bowling का, आपका batting का, आपके endurance का पूरा test होता है. But change is an essence of life. परिवर्तन संसार का नियम है और वह होते रहेगा और आपको उसे स्वीकार करना पड़ेगा।
और उससे आपको तो बाद में वनडे आया, T20 आया, तो आपको हर फॉर्म को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को भी करना पड़ेगा और प्लेयर्स को भी करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम चेंज हो गया है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो टेस्ट क्रिकेट के अपने दर्शक होंगे, वनडे के अपने होंगे, T20 के अपने होंगे। I enjoy all three formats. I have no problem, but I love watching a good test match still. I love watching a good one day, and T20 finishes are very fun, but still it requires tremendous set of planning and skill in T20 also. Okay, so, sir, now I'll request our sports in charge, VGI Gwalior, Mr. Are you fine with this, Pathak ji? Yeah. Thank you so much. Okay, our sports in charge, VGI Gwalior, Mr. Jiten Singh Yadav. Are you there, sir? Are you there, Mr. Jiten Singh Yadav? सर VGI इंदौर के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया था, VGI ग्वालियर में भी है विक्रांत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड इंदौर ऑल्सो VGI है, VGI ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सर यहाँ पर हम स्पोर्ट्स को, क्रिकेट को भी, खासकर सभी स्पोर्ट्स को, लेकिन क्रिकेट को भी सर बहुत प्रमोट करते हैं। स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को, इवन फीस में जो बेस्ट उनको हो सकता है सर वो देते हैं, फ्री शिप्स देते हैं हम। वी वांट टू प्रमोट स्पोर्ट्स सर, VGI की एक विशेषता है, और हमारे सर बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं। हमारी क्रिकेट एकेडमी भी है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। तो इंदौर क्रिकेट एकेडमी के मेहुल सदाराव को मैं इनवाइट करूंगा। ही आल्सो वांटेड टू आस्क यू समथिंग। मेहुल सदाराव, आर यू देयर? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मेहुल? दीपांशु राजपूत भी हमारे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं। दीपांशु, आर यू देयर? यस सर। ओके दीपांशु, आपका क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा क्वेश्चन था डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट क्लास क्रिकेट एंड इंटरनेशनल क्रिकेट माइंडसेट। जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो थोड़ा सा हल्का मिलता है, और जैसे जैसे आप बड़ा क्रिकेट खेलते हैं तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इंप्रूव होता है। तो नंबर ऑफ बॉल्स एज अ बैट्समैन आपको खेलने के लिए, मारने के लिए और क्वालिटी की मिलती हैं। तो आपको 6 बॉल में 1 मिलेगी मारने को, या 2 ओवर में 1 मिलेगा मारने को, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आपको 6 में 2 मिल सकती हैं, 2 ओवर में 4 मिल सकती है। तो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो पूरा खेल प्रेशर का है, नीचे से ऊपर तक का। जिसको प्रेशर हैंडल करना आ गया, ही विल बी थ्रू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुकर भी प्रेशर, कुकर में भी जब प्रेशर होता है सीटी बजती है। Yes sir. You should know how to release your pressure. जी सर। Now I'll request Mr. Arvind Supat from Indore VGI to please ask his question. सर अरविंद सर भी बहुत अच्छे प्लेयर थे खुद भी, और अभी so nice sir. What a pleasure. विजय इंदौर में है, विजय इंदौर फैकल्टी हैं। ओके अरविंद सर, आर यू देयर? यस सर। सर आपका सवाल। गुड आफ्टरनून सर। विक्रांत प्रणाम। विक्रांत प्रणाम सर। Arvind Super sir, in the management department, VITM Indore. My question is that sir, how is the physical and mental strength work together while playing a cricket? Your success always comes with your mental strength. Physically, your body should be there to push you. So your physical strength is very important, but your mental strength is very, 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 very important. Yes sir. So success in any sports or in life is only 10 to 15% physical strength. The rest is all mental strength. Thank you sir, very much. Very well. Your mental strength is the key. तभी आपको मेंटल स्ट्रेंथ पे किस्सा बताता हूं मैं जी। मेंटल स्ट्रेंथ में बहुत सालों पहले, अगर आपको याद है, औरंगजेब ने तेग बहादुर साहब को बोला था कि यू गेट कन्वर्टेड टू इस्लाम। उन्होंने मना कर दिया, और फिर उनके 3 शिष्य थे, रतिदास, मतिदास, सतीदास। तीनों को बोला कि आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने बोला नो, वी विल नॉट। तो उनका क्या किया, एक को कढ़ाई में उबाला, एक को आरी से काटा, और एक को जिंदा जलाया। नाउ दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड एंड मेंटल स्ट्रेंथ।
फिजिकल तो कुछ था ही नहीं, जल रहे थे, तकलीफ तो हो रही होगी, बट दैट्स मेंटल स्ट्रेंथ। और फिर तेग बहादुर साहब का जो दिल्ली में गुरुद्वारा है शीशगंज, उन्हीं के नाम पे, वहां पे उनका गर्दन काटा था, बट दैट इज मेंटल स्ट्रेंथ। सुभाष चंद्र बोस देश के लिए हिटलर से मिलने चले जाते हैं, दैट इज मेंटल स्ट्रेंथ। Okay. That is mental strength. So mental strength is the only key thing. If you take history, you take any history, you take any life, mental strength is the key and nothing else. Very true. Physically तो आज एक उम्र के बाद आप कमजोर हो ही जाते हैं, but then mentally you become stronger. So if you are mentally stronger at an early age with lot of vivek is महत्वपूर्ण. Rightly said, sir. So विजय इंदौर के क्रिकेट कोच मिस्टर गोपाल सिंह चौहान हमारे साथ है। सर इन्होंने भी अपना सर्वस्व सर क्रिकेट के लिए न्यौछावर करा है, ट्रेनिंग स्टूडेंट्स, और सर आज भी कभी भी मतलब गाइड करने को स्टूडेंट्स को और इन सबको तैयार रहते हैं। कोच ऑल्सो, और वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। सर आपके बहुत बड़े फैन भी हैं वो। सर नमस्ते। सर मेरा ये क्वेश्चन था सर कि किसी भी प्लेयर्स को प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना हो तो आप उसे क्या टिप्स देंगे? एक तो ये महत्वपूर्ण होता है कि उसके पास टैलेंट क्या है, क्या उम्र है उसकी, पहली बात तो ये, क्या स्किल सेट है, उसके बाद क्या कमिटमेंट लेवल्स हैं, ये सब चीजें तो बाद में आती हैं टिप्स। तो पहले उसका कमिटमेंट लेवल क्या है, उसकी एज क्या है, और क्या उसके पास वो स्किल सेट है, क्या उसके पास वह हुनर है, और उसके बाद हुनर से ज्यादा क्या उसके पास वो समर्पण है, क्या प्रतिबद्धता है। अगर प्रतिबद्धता और समर्पण है तो फिर स्किल सेट तो सिखाया जा सकता है। पर अगर स्किल है और प्रतिबद्धता और समर्पण नहीं है तो कुछ नहीं सिखाया जा सकता। आपको तैरना आता है पर पूल में ही नहीं कूदना है तो तैरेंगे कैसे? पूल में तो खुद ही को तैरना पड़ेगा ना, कूद के, और पूल में कूदेंगे तो क्लोरीन का पानी मुंह में जाएगा, थोड़ा ठंडा भी लगेगा ठंड में, बट आप प्रतिबद्ध हैं कि आपको स्विमिंग करनी तो आप करेंगे। तो जीवन में प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण है और वो अकाट्य समर्पण से आती है। तो उसके लिए व्यक्तित्व, जो खिलाड़ी उसके व्यक्तित्व वो चिंतन है कि नहीं है, वो महत्वपूर्ण है। और अगर चिंतन की दरिद्रता है, अगर दरिद्रता है तो कुछ नहीं कर सकते आप। Very rightly said. Very right. If you train hard, winning is easy. If you train easy, winning is hard. Now I will request our secretary Vikrant Singh Rathore sir, who himself is an exemplary spokesperson, to please join us for the conversation. Vikrant sir, आप हैं हमारे साथ? Unmute yourself. Unmute. Vikrant sir, आ रही है आपकी आवाज? We can hear you, sir. Yeah. So first of all, thank you, Amey sir, for sparing your time and coming on this platform to share it with us. Pleasure, Vikrant. Pleasure. Sir, I've grown up playing cricket and I've been a big cricket fan throughout my life. You're still a young man. I'm more into football now. Oh, that's so nice. My childhood was spent playing cricket. I was a left-arm spinner and a right-handed batsman. Beautiful. And I also played division and got appreciated by Mr. Sanjay Jagdale as well when we were playing against Indore. So, sir, my question to you is, there are a lot of people, even people like me, जो कि क्रिकेट खेलते हैं लेकिन आगे जाके एक लाइफ में एक पॉइंट आता है when they, you know, when this tough decision is there to, you know, choose between cricket and academics. So, is it actually possible to, you know, integrate both of them and have a successful career? Till 12th you can. Till 12th. Till 12th you can do it as long as your time management is excellent. Okay. Let me give you an example. Now, people, if they watch television also, if they want to be on Facebook also, if they want to be on WhatsApp also, if they want to be on Google, Twitter, wherever they want to be, and they have a school also, and then they want to play sports also. So there's a huge compromise you're doing in terms of your time. So with time management, you can do everything, my dear friend. The point is, you have 24 hours, you want to sleep for 8 hours, 9 hours, that's it. And then rest of the day is with you.
6 hours, 5 hours of cricket every day will give you good practice. But the point is, are you spending quality time or just believing in quantum? So quantity is not quantity is not important. The quality time is important. Be it 3 hours. तो वो 3 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे आप फील्ड पे जाते हैं, तो वहां पे आप समय खराब कर रहे हैं कि अपने खेल को दे रहे हैं. सो अगर आप वो टाइम को मैनेज कर लेंगे तो आप उसके साथ 2-3 काम और भी कर सकते हैं. अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते. लेट मी गिव एन एग्जांपल. टाटास, रतन टाटा जी, Tata Sons, they have hotels, they have chemical industries, they have Tata Motors, they have computers, they have IT industry, they have everything. And there is a group of, he's a director on board, but he attends every meeting. He used to attend when he was director. So it's huge, but that's called time management. So आपको अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए. अगर आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं तो मे बी टुमारो दिस पर्टिकुलर थिंग विक्रांत विल बी द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एज लॉन्ग एज यू हैव अ विजन, राइट, एंड देन यू हैव एन एग्जीक्यूशन. यस सर. बट नाउ द पॉइंट इज कमिंग बैक. अब एक ऐसे मोड पे आते हैं कि आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं विक्रांत. इंडिया से हर साल कितने लोग आईआईटी करते हैं इंडिया में? 8,000 बच्चे करते होंगे. 8,000 कर लेते होंगे इतने. 8,000 यस. मान लेते हैं 8,000. आईएएस कितने लोग करते हैं? 200, 150, 200. आईएएस 150, 200 बच्चे करते होंगे. बिल्कुल. इंडिया कितने लोग खेलते हैं? एक या दो. क्योंकि धोनी 10 साल खेला है, विराट कोहली 20 साल खेलेगा, वो जगह तो गई. तो जो जगह खाली होती है उसी जगह में आपको क्लेम करना है अपनी पोजीशन. तो क्या आप इस स्ट्रगल के लिए तैयार हैं? अगर आप इस स्ट्रगल के लिए तैयार हैं तो देन यू हैव टू कमिट योरसेल्फ. तो ये आपको प्लस सबसे बड़ी बात आ जाती है कि इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ कि मैं करूंगा. सेल्फ बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ. आई एग्री सर. और अगर वो सेल्फ बिलीफ नहीं है तो आप कभी नहीं कर पाएंगे. और अगर आप सेल्फ बिलीफ के साथ आगे बढ़ते हैं तो अगर आप गिरोगे भी तो भी आपको ये रहेगा कि इट वाज माय डिसीजन, बट दैट डिसीजन विल मेक यू लर्न अ लॉट. बिकॉज जब आपका सेल्फ बिलीफ होता है, इंटीग्रिटी होती है, तो आप मेहनत बहुत करते हैं. और ये पक्की बात है जीवन में कि परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं भी किया हुआ हो, कहीं भी किया हुआ गया हो. एक बड़े फ्रेश क्रिस्लर एक वायलिनिस्ट थे, मतलब मैं उनका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो वो वायलिन का शो कर रहे थे. तो एक उनकी शो खत्म हो गया, एक दौड़ के उनके लेडी यंग लड़की उनके पास गई, गले लगाया, बोले कि आई कैन गिव माई लाइफ फॉर दिस. तो कृष्ण साहब ने कि आई डिड. अब इसके लिए एक बहुत छोटी सी चीज है कि आपको क्या लाइफ में आप एवरीडे 1% इंप्रूवमेंट में जाते हो क्या? कोई सी भी चीज हो, खेल हो, तो आप मंथली 1% इंप्रूव करते हो, तो एनुअली आप 12% इंप्रूव करते हो. और within 8 years you improve 96%. Just 1% a month. 1% a month. I'm not saying 1% a day. 1% a month. But at 1% a month भी आप कुछ समय बाद उससे भाग जाओगे क्योंकि स्थिरता नहीं होती है. So it's very important to be sthir and do it. And that requires lots and lots of sadhana, dedication. So dedication is the key. Dedication, determination is the key. Very right. So nothing is there which cannot be achieved. Nothing is there which cannot be achieved. There's a question on this. When I was reading about you, I saw that you had cleared IAS exams before getting into the Indian cricket team. Is that true, sir? No, it's not true. It's false. I don't know even I of IAS. Okay. So please, if you can get it deleted in Google, I'll be fine, because the first thing in life. हर तरफ उसको use करा गया है. The first thing in delete नहीं कर सकते. You have to live with it. Vikrant, the first thing in life is you should be honest to accept what you are. Yeah. And nothing else.
Nothing else. Very true. You have to be honest to be what you are, and you should be free and upright to say what you are. That's it. Shukriya sir, shukriya so much. So the best apologies in the world is to say I am sorry. And the moment you try to justify your faults, you will make many lies. Very true, sir. Absolutely, sir. Absolutely. So very true. Next, I would Thank you so much, sir. Thank you. So next, I would request our treasurer, Ms. Garima Tomar ma'am, to please say a few words on this occasion. Namaste, sir. Hi, Garima. Yeah. Namaste, sir. आज सर आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा. इट वाज सो मोटिवेटिंग फॉर ऑल ऑफ अस. सबसे पहले तो मैं सारे गुरुज को हैप्पी गुरु पूर्णिमा कहना चाहूंगी. दूसरा सर मैं कहना चाहूंगी, एक चीज आपने जो बोली वो शायद हम सब अपनी लाइफ में इंकलकेट करें तो बहुत अच्छा होगा. आपने कहा डोंट गिव अप. दैट्स ट्रू. कुछ भी कंडीशन आ जाए यू शुड नॉट गिव अप. और जिसने गिव अप कर दिया तो ही इज गॉन. So sir, thank you so much for the motivating session. Sir, एक चीज पूछना चाहूंगी. I have a son. He is 6-year-old. He is very much in sports. He is like abhi he started playing football and little bit he is trying for cricket also. So I just want to ask, what is the best age? This is a very good age. Okay. If you would have listened to this, if you listened to the conversation, Garima, it was 10,000 hours. Okay. Which roughly takes 10 years. So if he starts now under a good mentor, under a good teacher, under a good coach, so by the time he'll be 16, he will be a master of the skill. और जैसा आपने बोला गुरु पूर्णिमा पे, तो मैं एक बहुत सी बात बोलूंगा आपको. विद्वतम च नृपत्वम च नेर तुल्ये कदाचना स्वदेशे पूजे राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते. तो नृपत्वम मतलब संस्कृत में राजा होता है. विद्वान को राजा से बड़ी उपाधि दी गई है, क्योंकि विद्वान की जो पूजा होती है वो सर्वत्र होती है और राजा को भुला दिया जाता है. तो स्वदेशी पूजे राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते. तो एक अच्छा टीचर मिलना चाहिए उसे, तब उसको वो डायरेक्शन मिलेगी. बिकॉज 6 साल के बच्चे को कोचिंग नहीं चाहिए. 6 साल के बच्चे को फन चाहिए. उसे मस्ती चाहिए मैदान में, उसे टीचिंग नहीं चाहिए. वो खुद आपको सिखा देगा बहुत कुछ. बिकॉज सबसे ज्यादा इनोसेंट होते हैं बच्चे. हम उनमें ठूसते हैं गलत चीजें. सर आई गेस फॉर हिम यू विल बी द बेस्ट मेंटर. सो वी वुड लाइक सर कि जैसे ही कोविड-19 का इम्पैक्ट कम हो, आप कैंपस आए, इंदौर कैंपस आए और हमारे स्टूडेंट्स को और मेरे बेटे को भी कुछ गाइडेंस दे. इट विल बी रियली ऑनर फॉर अस. श्योर सिस्टर, नो प्रॉब्लम. एंड थैंक यू सो मच सर. आज बहुत अच्छा लगा. संडे ऐसा लगा कि आज मजा आया संडे को घर पे बैठ के. Thank you so much ma'am. God bless you. I would request our group director sir, Dr. Satyanarayan, to please share a few words with us. Dr. Satyanarayan. Hello, sir. Can you hear me? I can, sir. Audible, sir. Sir. Yes. Sir. Very interesting to बहुत आपसे जो never give up जो idea आपने जो बताया. So you are from South. Sir, which language you are fluent in? Tamil? नहीं sir, हम हिंदी English सब. But you are basically from which place, sir? Karnataka or South? Sir, I am from Bangalore, but okay. मैंने पूरा भारत घूमा है. अरे वाह. कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक. Okay. तो City of Flowers. City of Flowers बोलिए. Yeah. तो बहुत अच्छा लगा. MTR's idlis are the best, sir. Oh yes, आप. तो यहाँ एक डाविड का एकेडमी है, पुणे डाविड का एकेडमी यहाँ जस्ट बैंगलोर के पास में ही है. Okay. तो मेरे स्टूडेंट्स काफी जाते हैं वहाँ. तो इस तरह की जैसे आपने बोला कि 5 आवर्स स्पेंड करना है पर डे, एंड सो वो लोग करते हैं, बट दे हैव दिस प्रेशर कि एकेडमिक एक तरफ है और स्पोर्ट्स करना है, एंड दे हैव टू मेक अ चॉइस. ये डिलेमा जो स्टूडेंट्स में है, हमको हेल्प करते हैं उनको. आई नो वन जो स्टूडेंट था मेरा, he was from Wellington, but he was
वो कर्नाटका मैच खेलता था फॉर द कर्नाटका स्टेट. सो ही वाज इन दैट पोजीशन. तो हम लोग उसको एकेडमिकली हेल्प करते थे. बट हाउ डू दे, उनको चैलेंजेस जो है, दे हैव टू पास द एग्जाम, ये डिग्री चाहिए उनको, पेरेंट्स का प्रेशर है, प्लस क्रिकेट का परफॉर्म करना है. सो दिस जो बैलेंस बिटवीन स्पोर्ट्स एंड एकेडमिक्स एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे मेनी स्टूडेंट्स, उनको ये जो डिसीजन लेना चाहिए, प्लस पेरेंटल प्रेशर भी रहता है. सो हम लोग भी प्रेशर कभी करते हैं, बट आई ट्राई टू अवॉइड दैट. तो ये जो है स्टूडेंट्स के लिए बहुत एडवाइस आपसे चाहिए था. सर एक बहुत बड़े सिलर हुए हैं, इनका नाम था लॉरेंस लिमिक्स. ओके, उनको पियर डी कोबर्टिन अवार्ड मिला है. पियर डी कोबर्टिन अवार्ड मिला है ओलंपिक्स में. सियोल ओलंपिक्स में वो अपनी रेस में जा रहे थे और वो सेकंड आते. ही वुड हैव वॉन द सिल्वर मेडल. ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं सर मैं. सेलर, 2 सिंगापुर के सेलर्स वहां पे डूब रहे थे उस कंपटीशन में. उन्होंने बोट डाइवर्ट करी और उनको बचाने के लिए चले गए. उसके पहले लिमॉक्स ने अपना 15 साल वैन में निकाला और जॉब्स करके, केवल उसको सेलिंग टीम में कनाडा को रिप्रेजेंट करना था इसलिए. राइट. और वर्ल्ड में गोल्ड मेडल सबको मिलते हैं, पर 17 लोगों को ही अभी तक पियर डी कोबर्टिन द फेयर प्ले मेडल मिला है. उसमें एक वो है लॉरेंस लिमिक्स. मैंने ये स्टोरी क्यों बताई आपको? मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई कि एक आदमी 15 साल वैन में गुजार के ओलंपिक रिप्रेजेंट करके ओलंपिक के ड्रीम को फुलफिल होने वाला है, सिल्वर मेडल को, उसको छोड़ के कुछ और करता है. तो जिंदगी में अनिश्चितताएं तो बहुत है और वह आपको मिलेंगी. राइट. बट एज ए स्पोर्ट्समैन यू शुड लर्न टू टेक योर डिसीजंस, एंड व्हेन यू लर्न टू टेक योर डिसीजंस, you try to teach yourself and be teachable for those decisions that you have taken. Now, it's a very easy thing as long as आप अपने समय को बहुत तराजू में तौल के चलते हो. तो प्रेशर आपको जब एकेडमिक्स का आता है तो वो पीरियड आप पढ़ के निकाल सकते हैं. असंभव नहीं है कि आप नहीं पढ़ सकते. आप प्लेन में जाते हैं तो पढ़ सकते हैं, ट्रेन में जाते हैं तो पढ़ सकते हैं. Life is not about excuses, sir. The day you start giving excuses, that day you are done. You are into a mediocre category in your life. Charlotte Craig, Taekwondo team of USA, sir. 2 साल की थी जब डिस्फंक्शनल हो गई बॉडी के अंदर, पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई, किडनी निकालना पड़ी एक. सर कौन सी, क्या किडनी निकालना पड़ी सर? She is a world medalist in Taekwondo and she represented Olympics in the USA team. इन द ताइक्वांडो टीम. एक किडनी के साथ सर आप सोचिए, डॉक्टर सबसे पहले बोलता है फिजिकल कांटेक्ट का स्पोर्ट मत खेलना, किडनी खराब है. एक नहीं है तो. राइट सर. तो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स. आप आज हम अनिल कुंबले को देखते हैं, 40,000 गेंदें फेंकी है सर. 40,000 उसने वो विकेट निकालने के लिए. सचिन तेंदुलकर विकेट के बीच में 800 किलोमीटर दौड़ा है. और साइना नेहवाल ने जब वो ट्रेनिंग पे जाती थी उस साल 99 में, जब वो वर्ल्ड के सीन पे अच्छी तरह आई थी उस पीरियड में, सर नॉट 99 लेटर, वॉट एवर टाइम इट वॉज, उस साल वो बजाज के स्कूटर में, हमारा बजाज चेतक, आपने देखा होगा वो स्कूटर, उसमें 1100 किलोमीटर घूमी है पीछे बैठ के पिता. 11,000 किलोमीटर उस साल. 11,000 किलोमीटर. Excuses can be given everywhere for everything. In air condition you can find excuses sitting at home, or you can be somebody who can just want to be there and do it for the nation, or do it for yourself, for your ambition. So there is no room for excuses in life. You can study, you can play a sport, you can do both the things, as long as आपके पास अनुशासन का सेतु है. अगर आपके पास, very well said. Yeah, you have to have that. There are no excuses in life. There are tremendous Carolee Takaks. उसका एक हाथ उड़ गया तो दूसरे हाथ से गन शूटिंग शुरू कर दी, और जब तक वो गन शूट करते रहा, किसी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता ही नहीं, उसी ने जीता. सोचिए आप सर, गन पिस्टल शूटिंग की बात कर रहा हूं मैं. पिस्टल शूटिंग, जिस हाथ से आपका जो डोमिनेंट हैंड है वो कट गया, तो नॉन डोमिनेंट हैंड से आपने पिस्टल शूटिंग शुरू करी और उसमें भी गोल्ड मेडल जीत लिया. तो I'm sorry, there is no room for excuses in this world. रात को गलवान वैली में हमारे सोल्जर लड़ रहे थे, किसी ने ये नहीं बोला कि नीचे पानी है, मैं गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा. They fought, combat, man to man combat. सामने वाले ने धोखा दिया,
पर कॉम्बैट किया, काय के लिए किया? जरासी देश की सीमा के लिए। वो हमारे लिए जरासी है, उनके लिए बहुत है, क्योंकि उनके लिए वो प्राइड है। तो यू हैव टू लिव विद दैट प्राइड। अगर आप में प्राइड नहीं है कुछ चीज करने का, तो आप नहीं कर पाएंगे। So it's all about not giving excuses. It's all about putting an effort and putting an effort in a very big way. Thank you, sir. Thank you, Vikrant. Thank you so much. सही बोला है सर आपने। Friends, Vikrant Group has always been on the forefront to encourage, motivate, and to cultivate the sportsman spirit and provide a sports environment among the students by launching of the VCA, Vikrant Cricket Academy, organizing the VCCL, Vikrant Corporate Cricket League, and VPL, Vikrant Premier League, year after year. Now I would request our Managing Director Nitin Tomar sir to please extend a vote of thanks. Nitin Tomar sir. Hello, Amey sir. Can you hear? Hello. Ari sir, Ari aapki awaaz. Yes sir, we can hear you. Yes sir. Thank you very much for sparing your time. I wanted to just put in something with what GD sir has asked actually. I don't know. I mean, I was going through the details and all. So Anil Kumble, I think I know the Anil Kumble, Jabal Srina, these all are engineers basically, right? Yeah. They might have started their career at a little later stage. It's all about starting either early or maybe a late. But as sir said, as Amey sir just said, you need not to have an excuse. आप कर सकते हैं। अगर आपने सोचा क्रिकेटर बनना है, इंजीनियरिंग के साथ भी, I mean, we do have engineering course with us. We have lot many students who are interested into sports, especially cricket, like Vikrant Cricket Academy 2017 में we launched it. So मैं बोलना चाहूँगा जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं, ये लेट नहीं है. You can still make it. It's all about, I mean, a late entry or maybe an early entry. I mean, if an early entry, you ought to have some kind of sacrifices, जो काफी लोग करते हैं. Late entries, they have an academy, they are good academics as well along with that. So it's never a late or an early. You just have to work. As sir said, 10,000 hours आपको देना है. 10,000 घंटे अगर आप दे सकते हैं अपने लाइफ के अपना करियर बनाने के लिए या अपने इंटरेस्ट के लिए, whatever kind of interest you have, you give your 10,000 hours of those, तो आप कहीं भी किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पे आप एक्सेल कर सकते हैं. एंड एट विक्रांत मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करते हैं जितना कर सकते हैं. And the main reason of having this webinar was basically, promoting these sports and, I mean, having the personalities which our students think of. कि हमको हमारे बच्चे सोचते हैं कि यार वो कैसे बन गए. A kind of struggle, when you share that kind of struggle that you have done in order to achieve where you are today. तो ये struggle बच्चों के साथ share करना बहुत जरूरी है, because these are the students, these are the future of India, these are the future of the Indian teams basically. तो वो कल वही जाना चाहेंगे जहाँ आप पहुंच चुके हैं. So thank you very much, Amit sir, for one thing I would like to add. Yes sir. One thing I like to add. वॉरेन बफे 90 साल के हो गए हैं अभी. हाँ. दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं और उन्होंने एक ही चीज पे स्ट्रेस किया, हमेशा जब मैंने उनका इंटरव्यू सुना है, कि उन्होंने अभी अपने रिसेंट इंटरव्यू में बोला कि अभी आजकल मैं कम पढ़ता हूँ. कम पढ़ता हूँ. तो उनका कम पढ़ना होता है 8 घंटा रोज. 90 साल की उम्र में दुनिया के सबसे सेकंड अमीर आदमी को वो 8 घंटा पढ़ते हैं अभी भी रोज. और जब वो जवान थे तब वो 16 घंटे पढ़ते थे. Okay. So whatever you want to do, he was into share market, but the point is he read it. You have to read, practice. Look at the answer from a gentleman who's 90. He said that I just read less now, which is 8 hours a day now. He has been totally inspirational. The kind of the way. And Bill Gates अपनी बेटी को मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन है वो 11th क्लास में दिया है. Yeah, right. 8th में नहीं दिया है, 6th में नहीं दिया है. So we have to also understand as parents that we don't have to give this particular addiction to them at a very young age. To all the mothers and to all the parents also. Don't need to. Bill Gates सब दे सकता है. मोबाइल फोन खुद का बना के दे सकता है. But then that's the way it is. They know it's an addiction. You have to understand when to introduce your kids for what. So don't waste your time in these gadgets to all the students also. Right. There is so many. You can use gadgets. Technology can be used for the benefit and may not be used for the benefit. So you can use it the other way also, which cannot be beneficial for you. So you don't need. See, आजकल guided missiles है पर आदमी misguided है. Misguided. And you don't need engineers. You need lifestyle engineers. You need lifestyle engineers. So you need to understand that humility is the most important thing in life. And that can only come when you read the greats.
when you listen to the great. और सबसे अच्छी शिक्षा आपको जीवन दर्शन से मिलती है. जीवन जब आप जीते हैं तो आप बहुत शिक्षित होते हैं, क्योंकि अनुभव एक महान अध्यापक है. Thank you very much, sir. And this is a good point actually. You know, I've seen that the youth जो अभी कॉलेज में हमारे जो बच्चे अभी तो नहीं आ रहे हैं because of the COVID, but before that, lot of teens basically and lot of youth they spend lot of time on their phones. And ये क्या मुझे लग रहा है कि जितना टाइम वो फोन पे बिताते हैं, इतना अगर अपने स्किल डेवलपमेंट पे बिताते होते तो I don't know, वो जो 10,000 घंटे की हम जो बात कर रहे थे, I think 20-25% तो इसी में निकल जाएगा जो हम फोन पे हम लोग. There's a book called Outliers by Malcolm Gladwell. Everybody should read that in a college time. Outliner. You should read Outliers by Malcolm Gladwell. Okay. Sure. Thank you very much, sir, and thank you, Messi sir. Wonderful. You've been a wonderful host, and आपने बहुत अच्छी तरह पूरा coordinate किया सबके साथ. And thank you very much for everything, sir. Messi sir, you can continue. Once again, I would like to thank our dignitaries, students, faculties, and all sports-loving friends for your heartfelt participation in this sports webinar, Junoon. Special thanks to our Managing Director, Nitin Tomar sir, for his motivation and encouragement in conduction of this sports webinar. A hearty thanks to Mr. Amek Prasia for joining us and for being such a sport in answering all our questions. We would like to thank you, Amek sir. दिल से जवाब देने के लिए इमोशन से. मैंने इनसे पूछा था सर को, सर आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में देना चाह रहा हूँ, तो हमें सर सेड यार उसमें मजा नहीं आएगा, आप पूछना मैं जवाब दूंगा. फ्रॉम द हार्ट. तो सर द्विवेदी जी की 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है. मन का विश्वास रगों में साहस भरता है. चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ओके, इसी ख्याल के साथ दोस्तों आपसे विदा लेने का समय आ गया है. A few last word, Amek sir. What can I say? I can just say that आप ही की लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने ये लाइन अच्छी, बहुत सुंदर लाइनें बोली हैं. मुश्किलों से उभरती है शख्सियत जनाब, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का. क्या बात. See you again all next week, same time with another sports superstar. Till then, your host and host Subhash Masi from Vikrant Group of Institutions signing off. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind. Thank you. Okay, thank you.